Hello students, welcome to JEENious classes channel. This is our fourth lecture on inverse trigonometric function. Here we are going to discuss about three more properties. So before starting the class, those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon. And if you really like my class, don't forget to like it, share with your friends and comment me. If you face any problem during my class, please mention me in the comment box so that in the next class I can solve it before starting the class. So let's start the class directly. Here we are going to discuss about the sixth property, which states that tan inverse of x plus tan inverse of y is this thing. It's a huge one. We have to remember this because this is the gateway. I'm telling you this is the gateway. Why I'm telling you so, you will understand as the class proceeds. So tan inverse x plus tan inverse y can be written as tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. It's only when 1 minus xy is greater than 0. What I'm saying is 1 minus xy is greater than 0 implies your xy is less than 1. When xy is less than 1, we will say tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y by 1 minus xy. But if xy is less than 1, greater than 1, then we are having two options. One is when x is greater than 0 and y is greater than 0. When it is so, then you will write the formula tan inverse x plus tan inverse y as pi plus tan inverse x plus y by 1 minus xy. This you have to remember. Again, I'm telling you. And if x is less than 0 and y is less than 0, in both the cases, xy is greater than 1. That is the condition. If it is so, x is less than 0 and y is less than 0, then the formula is same but with a minus pi sign. So it will be minus pi plus tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Is it clear? Maybe it will be little difficult for you people who are learning the first time, but you have to remember somehow whether to get rid of other properties which I am going to tell you right now after this one. And the second one is if tan inverse x minus tan inverse y is there, it can be written as tan inverse x minus y by 1 plus xy. Again in this case, if 1 plus xy is greater than 0 implies xy is greater than minus 1. But if xy is less than minus 1, then again two cases will come. One is when x is greater than 0, y is less than 0. And when x is less than 0 and y is greater than 0. So when x is greater than 0 and y is less than 0, we will write this thing as pi plus tan inverse x minus y by 1 plus xy. But when x is less than 0 and y is greater than 0, you will write it as minus pi plus tan inverse x minus y by 1 plus xy. Is it clear? Again, I'm telling you, yes, it is difficult to remember for the first time, but if you can remember this, you will get rid of lot of properties which I will show you right now. There are this kind of conditions are there in several properties coming right after this. There you don't have to remember anything. That much I can tell you. Let us consider property number 7. See this one. Don't get nervous by looking this property. See, sin inverse x plus sin inverse y. Again, this kind of things are there. When xy is lying between 0 and 1, when x square plus y square is greater than 1, and all these things. But what I found in my teaching career, that it is very difficult for the students to remember this kind of things in the examination hall. Okay? Because I think you won't be able to carry, even if you can remember this, very less amount of students will able to carry this thing in mind in examination time. So it is always better to remember that tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y formula, so that you can get rid of this. What I'm telling you this is, don't remember anything for this formula. Only remember this much. Will it be helpful for you?
Only sine inverse x plus sine inverse y, you will remember sine inverse x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square. And for sine inverse x minus sine inverse y, for this one, you will remember this sine inverse x into root over 1 minus y square minus y into root over 1 minus x square. That's exactly what I have written. Only remember this much. Okay, let us take another property. See again the big one. Cos inverse x plus cos inverse y, all these things. Cos inverse x minus cos inverse y, again this thing. Again, it is difficult to remember. So what I will give you relief is that don't remember all these things, only remember this much. That is cos inverse x plus cos inverse y. Simply remember, it is cos inverse xy minus root over 1 minus x square into 1 minus y square. Same thing with cos inverse x minus cos inverse y. It will be cos inverse xy plus root over 1 minus x square into root over 1 minus y square. Simply remember this. One thing I will tell you, why I am telling you to remember this much only, other than tan inverse, because in tan inverse you have to remember all. Why I am telling you this? Because if you find that in your problem, x and y, the variable is given to us, x and y given without any condition. Only the variable x and y is present there. Suppose there is sine inverse x plus sine inverse y. This is given. And in case of x and y are not numerical values. They are simply the variables they have given in the problem. So don't think about anything. Simply apply sine inverse x plus sine inverse y formula in that case. If the question is sine inverse x plus sine inverse y. If it is cos inverse x minus cos inverse y, directly apply this formula. Without looking anything. But yes, now the question comes, said, if x and y are the numerical values, then what we will do? Now I will tell you the magic part of this. If you find that numerical values is given over here, whatever value is given to you, you convert everything in terms of tan inverse. What I'm saying is, suppose we have been given, say, sine inverse 1/3. Now, what I will do, I will simply convert this in terms of tan inverse. How? I will write this thing as my theta. So from here we can write sine theta is nothing but 1/3. I will draw a right angle triangle, take this thing as my theta. This is 1, this is 3. So from Pythagoras theorem, the base will be 3 square minus 1 square. That is under root 8, that is 2 root 2. Am I correct? So in this case, your tan theta will be 1 over 2 root 2. That is theta is nothing but tan inverse 1 by 2 root 2. Okay. So we have converted sine inverse 1/3 in terms of tan inverse 1 by 2 root 2. Is it clear? The moment you convert this, all the sine inverse or all the cos inverse in terms of tan inverse, now you know the formula for tan inverse. Tan inverse x plus tan inverse y or tan inverse x minus tan inverse y. So there you plug in and get the answer. That is why I told you for tan inverse x plus tan inverse y, you have to remember all the conditions, but not for sine inverse x plus sine inverse y or sine inverse x minus sine inverse y. Same thing with cos inverse x plus cos inverse y and cos inverse x minus cos inverse y. Can you remember this? You have to remember this to get rid of all those conditions which are given in property 7 and 8, right? Okay, let us take another thing. That is, if x1, x2, x3, so on, xn belongs to R, then tan inverse x1 plus tan inverse x2, you see this property I have written. This you can use. Again, if no conditions are given to you, about x1, x2, x3. Are you getting my point? Because if x1, x2, x3, the conditions are given. Suppose x1, it has some numerical value, x2 has some numerical value, x3 has some numerical value. In that case, don't use this formula directly. In that case, what you will do, you will take 2 at a time, check the condition, and then apply the formula of tan inverse x plus tan inverse y or tan inverse x minus tan inverse y. Is it clear? It is when you are having some numerical values. Otherwise, directly apply this formula. So in this formula, it states that tan inverse x1 plus tan inverse x2 plus tan inverse x3, so on, tan inverse xn can be written as tan inverse s1 minus s, see here, s1 minus s3 plus s5 and so on.
divided by 1 minus s2 plus s4 minus dot 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 so on. What is sk? Here sk is the sum of the product of x1, x2, x3 taking k at a time. It means if I say s2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तुम यहां पर x1, x2 दोनों प्रोडक्ट को लेके तुम ऐड करोगे. मतलब मान लो तुम्हारा पास है tan inverse x1 plus tan inverse x2 plus tan inverse x3. In that case, what will be the formula? The formula in this case will be tan inverse s1 minus s3 divided by 1 minus s2, right? Because इसके ऊपर तो हम कर नहीं पाएंगे. So now, what is your s2? s2 का मतलब है दोनों को लेके, प्रोडक्ट को लेके सम करो. इसका मतलब क्या हुआ? s2 will be x1 x2 plus x2 x3 plus x1 x3. Is it clear? What will be your s3? तीनों को लेके प्रोडक्ट करो. मतलब it will be x1 x2 and x3. ओके, सो इसका मेरा जो फॉर्मूला आ रहा है, मान लो कि हम ले रहे हैं tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. In that case, your formula will be tan inverse x plus y plus z. This is your s1 minus s3. s3 मतलब x y z divided by 1 minus s2. s2 मतलब x y y z zx. Is this much clear to all of you? Okay, now let us take some problem. See this question. यहां पर बोला है prove that tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 is equals to tan inverse 2 by 9. Simply what I will do, हम देखेंगे यहां पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? tan inverse 1 over 7, tan inverse 1 over 13. तो पहले ही हम कर लेंगे 1 by 7 into 1 by 13. ये क्या हो रहा है? ये क्या एक से छोटा हो रहा है या एक से ज्यादा हो रहा है? ये मुझे पहले देखना है. So 1 by 7 into 1 by 13, it is coming to like what? It is coming like 1 over 91, which is less than 1. अगर xy less than 1 है, तब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो यहां पर क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? xy अगर लेस देन 1 है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देंगे tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy. तो चलो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली यहां पर. तो यहां पर हम लोग करेंगे tan इनवर्स 1 by 7 plus 1 by 13 divided by 1 minus 1 by 7 into 1 by 13. मतलब कितना आ रहा है मेरा? tan इनवर्स 13 plus 7 by 91 divided by 91 minus 1 by 91. So it is coming like tan inverse 13 plus 7, that is 20 by 29 divided by 90 plus 21, 90 by 91. So it gives us tan inverse 2 by 9. समझ में गया? So इसका आंसर कितना होगा? tan inverse 2 by 9, which is nothing but your right hand side. Is it clear? So जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है और वो 10 में ही है तो मेरा तो कोई चिंता ही नहीं है. तो हम लोग सिंपल देखेंगे एक्स वाई मेरा कहां पर लाई कर रहा है. इज इट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? अगर लेस देन 1 है तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर ग्रेटर देन 1 है तब हम चेक करेंगे एक्स और वाई का पोजीशन क्या है, मतलब साइन क्या है. अकॉर्डिंगली वी विल यूज वेदर इट इज पाई प्लस दैट और माइनस पाई प्लस दैट. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. See this one. Let me drop this one. See this. यहां पर दिया हुआ है कि tan inverse 2 plus tan inverse 3. अभी देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है? tan inverse 2 plus tan inverse 3. ओके, अभी xy क्या है? 2 into 3. इसमें क्या हुआ? 6. 6 मतलब इट इज ग्रेटर देन 1. अगर xy ग्रेटर देन 1 है तब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहां पर जो x और y दिया है वो क्या 0 से ज्यादा है या 0 से कम है. हम लोग देख रहे हैं 2 and 3 बोथ आर ग्रेटर देन 0. अगर बोथ ग्रेटर देन 0 है तब हम लोग क्या सीखा? अगर बोथ ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy. चलो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर दे रहे. तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स
2 plus 3 by 1 minus 2 into 3. So it is coming like pi plus tan inverse 6 by, sorry, it's 5 by minus 5. मतलब pi plus tan inverse minus 1. Tan inverse minus 1 क्या होगा? Tan inverse of minus theta is minus tan inverse theta. So it will be pi minus tan inverse 1. और tan inverse 1 का वैल्यू कितना होता है? Tan inverse tan pi by 4. मतलब मेरा आ रहा है कितना? Pi minus pi by 4, which is coming like 3 pi by 4, which is your right hand side. समझ में किया? पूरा क्लियर हुआ? ओके, चलो थर्ड प्रॉब्लम। यहां पर देखो तीनों दिया हुआ है, हाफ दिया है, 1/5 दिया है, tan इनवर्स 1/8 भी दिया है। अभी यहां पर हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स a डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अभी हमको दो दो करके लेके उसका कंडीशन देख के हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। अभी देखो पहले हम ये दोनों ले रहे, पहले हम ये दोनों को ले रहे, तो ये दोनों में लेंगे तो x मेरा क्या है? हाफ, और y मेरा क्या है? 1/5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना? 1/10 विच इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 में, तो आंसर क्या होगा? tan इनवर्स हाफ प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ इंटू 1/5। और मेरा जितना tan इनवर्स 1/8 तो है ये। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है? 7/10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस tan इनवर्स 1/8। मतलब यहां पर मेरा कितना आ रहा है? tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। ओके, अभी इसमें फिर से हम लोग को चेक करना है एक्स वाई क्या है। यहां पर x कितना है? 7/9, y कितना है? 1/8। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 7/72। और 7/72 क्या होता है? लेस देन 1। मतलब ये फॉर्मूला फिर से हम लोग अप्लाई कर देंगे। अभी क्या होगा? tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। कितना आ रहा है? tan इनवर्स 56 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 72 माइनस 7। So it is coming like tan inverse 65 divided by 65. That is tan inverse of 1. Tan inverse of 1 का मतलब क्या हुआ? Oh, ये you cannot see ना? Sorry. So let me just write it here. So it is coming like what? Tan inverse 1 आया, right? क्यों? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग को क्या मिल रहा है? ये ऑलरेडी तुम लोग दिखाई नहीं दिया। सिंपली यू कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा tan इनवर्स 65/65 विच इज कमिंग लाइक tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है? tan इनवर्स tan pi/4। मतलब कितना हुआ? pi/4 विच इज योर राइट हैंड साइड। Is it clear to all of you? Have you understood this? Okay. See this problem. In this problem, we are having tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. Okay. क्या करेंगे? tan inverse 1 को हाथ मत लगाओ क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है। प्लस tan inverse 2 plus tan inverse 3. अभी x यहां पर क्या है? What is x? x is 2 एंड y कितना है? y है मेरा 3। मतलब xy अगर हम करेंगे तो आएगा क्या? 2 into 3 that is 6। अभी 6 हो रहा है क्या? 1 से ज्यादा। अगर 1 से ज्यादा है तो हम लोग क्या सीखा था? यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लोग क्या लिखेंगे? अगर x इंटू y अगर 1 से ज्यादा है एंड x भी 0 से ज्यादा है, y भी 0 से ज्यादा है, अगर ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई विल राइट पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स। क्लियर? यही तो मेरा फॉर्मूला है। अभी हम लोग यहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे
tan inverse 2 plus 3 by 1 minus 2 into 3. So we are getting tan inverse 1 plus tan inverse 6 by, I'm sorry, it's not 6, it's 5. 3 plus 2 is 5. 1 minus 6, that is minus 5. So we are having tan inverse 1 plus tan inverse minus 1. लेकिन एक चीज हम लोग करना भूल गया, यहां पर एक पाई प्लस होगा ना, बिकॉज फॉर्मूला इज पाई प्लस tan इनवर्स दिस. सो यहां पर मेरा एक पाई है. अच्छा, अभी देखो tan इनवर्स माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? माइनस tan इनवर्स 1, राइट? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस मेरा पाई है. अभी क्या हो रहा है? ये tan इनवर्स 1 कट गया, बचा कितना? पाई. एंड विच इज योर राइट हैंड साइड? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? बार बार क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं जब भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y देंगे, हम लोग चेक करेंगे x y क्या है, x इंटू y क्या है. ये अगर लेस देन 1 है, नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर देंगे tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई. और अगर ये 1 से ज्यादा है, तब हम देखेंगे x और y का साइन क्या है. अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो हम उसका साथ पाई ऐड कर देंगे. अगर दोनों ही नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? उसका साथ, मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई का साथ माइनस पाई ले लेंगे. दैट्स इट. क्लियर? सी दिस प्रॉब्लम, हम इसको रब कर दे रहे हैं. सी दिस प्रॉब्लम, यहां पर बोले प्रूव दैट tan इनवर्स ऑल दिस थिंग्स इक्वल्स टू पाई बाई 2. यहां पर एक मजा देखो. हियर देयर इज नो कंडीशन गिवन फॉर x, y, z and r. Is it clear? So in this case, you can apply the formula of tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. हमने पहले ही बोला, अगर x, y, z का कोई कंडीशन नहीं देगा तुमको, तो उसमें तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना नहीं. वरना क्या करोगे? दो दो करके लेके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो यहां पर अगर हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये मेरा क्या है? tan इनवर्स x, ये मान लो tan इनवर्स y, ये मान लो tan इनवर्स z. मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ये फॉर्मूला क्या आया? हमने क्या सिखाया है अभी अभी? tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. किसका फॉर्मूला? tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. That exactly what we are doing here. Divided by 1 minus अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? tan इनवर्स, इधर में देखो, x कट दो, y कैंसिल करो, फिर z कैंसिल करो. ओके, सो यहां पर मेरा आ रहा है xy by zr plus yz by xr plus zx by yr minus xyz divided by r cube divided by whole divided by 1 minus, इसमें देखो y cancel, x cancel. So we are having z square by r square minus y goes off, z goes off. It's x square by r square minus z goes off, x goes off. So it is y square by r square, right? अभी हम क्या कर रहे हैं? इसका ऊपर का एलसीएम ले रहे हैं. ऊपर का एलसीएम क्या होगा? x y z r क्यूब. सो कितना आ रहा है? ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर. ये क्या होगा? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना होगा? नीचे में एलसीएम ले रहे हैं हम लोग क्या? आर स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग बेसिकली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, सो ऊपर का कुछ भी हो जाए, ये इसको अगर ऊपर चला जाएगा तो मेरा कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड आर। ये समझो क्यों हमने ये आर स्क्वायर लिखा, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो हमने यहां पर क्या किया, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह में हम लोग आर स्क्वायर लिख दिया। अभी डिनोमिनेटर में मेरा कितना आ रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो जाए नीचे में मेरा 0 आ रहा है, मतलब ये हो रहा है क्या, इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स tan पाई बाई 2, मतलब कितना आया, पाई बाई 2 विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। समझ में गया बच्चों, ठीक है, एकदम क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो रहा है प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स पे, सो दैट आई कैन आंसर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया हुआ है cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इक्वल्स टू अल्फा। यहां पर भी कोई भी कंडीशन दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। अभी इसको अगर करें तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसके वाला ये वाला चीज देखो, cos इनवर्स x बाई ए इंटू वाई बाई बी माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा। हमने सिंपली इसका फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अभी cos इनवर्स को वो इस तरफ राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos अल्फा, सो एक्स वाई बाई ए बी माइनस रूट ओवर, ये जो चीज है मेरा यहां पर रहने दो, cos अल्फा मतलब रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, एक्स वाई बाई ए बी माइनस cos अल्फा। अभी रूट को हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी आर गेटिंग, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। अभी देखो ये वाला चीज कैंसिल हो जा रहा है बोथ साइड से, अभी बचा क्या है, इसको और इसको जैसा है सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके आओ और इसको लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आओ, फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस अल्फा जो है, और कॉस स्क्वायर अल्फा अगर उस तरफ चला जाएगा तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज नथिंग बट योर साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव्ड। समझ में क्या, क्यों ये सम तुम लोग को करवाया, क्योंकि ये समझने के लिए कि हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। जैसे हमने पहले तुम लोगों को बोला कि पूरा फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली वो पहला वाला फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, एंड पर्टिकुलरली tan इनवर्स का जो फॉर्मूला हम दिखाए वो याद रखो और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स मूव फॉर अनदर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी कॉमन इन जेईई मेंस में बहुत बार ये प्रॉब्लम आया है। देखो हम लोगों को सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सबको पता है। अभी देखो साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पाई बाई 2। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, दिस इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है पाई बाई 2। सो ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअली दिस वन इज पाई बाई 2, दिस वन इज पाई बाई 2 एंड दिस वन इज पाई बाई 2। बोलो हाँ कि ना,
मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 है और तीनों को ऐड करने से मुझे कितना मिल रहा है 3 पाई बाई 2। ये तभी होगा जब इंडिविजुअली दे आर इक्वल्स टू पाई बाई 2। मतलब साइन इनवर्स एक्स मेरा पाई बाई 2 है, इंप्लाइज एक्स इज 1। सिमिलरली साइन इनवर्स y मेरा हो रहा है पाई बाई 2, दैट इंप्लाइज y इज 1। सिमिलरली साइन इनवर्स z मेरा हो रहा है पाई बाई 2, इसका मतलब z इज 1। ओके, अभी बोला है इसका वैल्यू निकाल। देखो ये सिग्मा को देख के तुम लोगों को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये सिग्मा क्या सिग्निफाई कर रहे हैं बोलो तो? ये सिग्निफाई कर रहे हैं एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये चीज। देखो बाल अच्छा से, कितना बड़ा बड़ा नंबर दिया है, देखो एक्सपोनेंट में कितना बड़ा बड़ा नंबर दिया है, सो दैट यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड। सिग्मा का मतलब है इसके बाद तुम लोग प्लस दोगे, और सिंस यहां पर वेरिएबल मेरा एक्स वाई जेड है तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में तुम लोग लिखोगे। मतलब पहले लिखा हम एक्स वाई, अभी सेम चीज को हम लोग लिखेंगे वाई और जेड में। मतलब यहां पर क्या होगा, वाई नहीं सॉरी ये जेड होगा। समझ में गया? प्लस हम ये चीज और नहीं लिख रहे, यहां पर क्या होगा सेम चीज होगा सिर्फ जेड और एक्स में। ओके अच्छा एक चीज देखो, सब तो एक्स वाई जेड तो सब 1 है। इसका मतलब ये वाला जो चीज है इसका वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। मतलब मेरा आ रहा है क्या 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, मतलब आंसर आ रहा है 1। इसके लिए भी आंसर 1 आएगा और इसके लिए भी आंसर 1 आएगा। मतलब मेरा आंसर कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। मतलब इसका वैल्यू होगा 3। समझ में क्या? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू नो द बेसिक डेफिनेशन दैट इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, दैट्स इट। ओके लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सी दिस वन। इसमें देखो हम लोग साइन का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहां पर मुझे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज दिया हुआ है, राइट? तो हम लोग को पहले करना क्या है, इसको सबको कन्वर्ट करना है tan में। फिर tan इनवर्स में जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फिर आई विल यूज माई गेटवे दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में विच फॉर्मूला सुट्स दिस प्रॉब्लम, राइट? पहले हम लोग को करना है ये साइन इनवर्स 4/5 को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको थीटा मांग के चल रहे हैं। मतलब मेरा आ रहा है साइन थीटा इज 4/5। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, दिस एंगल इज थीटा। सो ये एंगल कितना आएगा 3 आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। मतलब मेरा tan थीटा कितना आ रहा है 4/3। सो थीटा कितना आ रहा है, थीटा इज कमिंग टू tan इनवर्स 4/3। मतलब ये वाला जो चीज है साइन इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू आ गया tan इनवर्स 4/3, राइट? सिमिलरली हम थोड़ा जल्दी कर ले अभी, इसको भी हमको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन थीटा इज कमिंग लाइक 5/13। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, दिस इज 5, दिस इज 13। सो ये क्या होगा 12। मतलब tan थीटा कितना आएगा यहां पर 5/12। मतलब थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 5/12। क्लियर? अभी बनाते हैं साइन इनवर्स 16/65। इसको मान के चलते हैं ये थीटा है। सो मेरा साइन थीटा कितना होएगा 16/65। नाउ अगेन ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस इज 16, दिस इज 65। मतलब ये कितना आएगा 63। मतलब tan थीटा कितना आ रहा है इन दिस केस, ये आ रहा है मेरा 16/63। मतलब थीटा आ रहा है tan इनवर्स 16/63। समझ में गया? मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी कन्वर्ट कहां पर हो गया, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 16/63। ओके अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 5/12। यहां पर x क्या है 4/3, y क्या है 5/12। सो 4/3 इंटू 5/12 कितना आ रहा है भाई 20/36 विच इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे क्या
x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो चलो हम लोग यूज करते हैं यहां पर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कितना आ रहा है भाई? tan इनवर्स 15 divided by 36 minus 20. So it is coming like tan inverse. Is it clear? So it is coming like tan inverse 63 by 16. Okay? अच्छा, मतलब मेरा ये सम जो है ये दोनों को ऐड करके मेरा कितना आ रहा है? tan इनवर्स 63 by 16 और यहां पर है मेरा tan इनवर्स 16 by 63। देखो एक चीज हम लोग ऑलरेडी किए हैं प्रॉपर्टीज में, वो है कि भाई tan इनवर्स 1 by x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स x का जब x इज ग्रेटर देन 0। यहां पर देखो tan इनवर्स 16 by 63 है, जहां पर 16 by 63 क्या है? 0 से ज्यादा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? cot इनवर्स 63 by 16। इज इट क्लियर? अभी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? पाई बाई 2। x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है मेरा? पाई बाई 2। मतलब ये सम का आंसर क्या होगा? पाई बाई 2। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब साइन या कॉस में अगर कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन tan इनवर्स, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम तुम लोग यूज कर दो वो गेटवे से। समझ में गया? सो दैट्स ऑल अबाउट this class. In the next class, we will be going for some other properties and we will try to draw the graphs of those properties in the next class. Till then, goodbye and take care. But before ending the class, let me tell you, those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon to get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, please press the like button, share it with your friends and don't forget to comment. And you can download my app. Link has been given in the description box because in the app I used to come twice a week live. So there you can ask me your doubts and questions. It's all free. So you people can download the app immediately. Link has been given in the description box. So thank you so much and see you in my next class.